जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। या मतलब क्या, वो मिडिल किंगडम वो कह रहे हैं, उनके लेक्सिकन में है, जो पुराने जमाने से लेके आया। उन्होंने गलती ये की है कि उन्होंने नए जमाने के लिए उसको नया डिसाइफर नहीं किया, नया नाम नहीं दिया। जो एंशिएंट टाइम का उनका नाम था वही दिया है। तो लेट अस लुक एट द एंशिएंट टाइम नेक्स्ट, द सर, मैप। बिफोर वी गो देयर, या चाइना के ऊपर एक कॉन्सेप्ट आप प्लीज समझाइए। भारत का जो कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज ऑलवेज राउंड, भारत का, पुराने भारत का, चाइना का भी क्या कॉन्सेप्ट था सर? चाइना वॉज फ्लैट रेक्टेंगल. Chinese map was गाइस, always flat. The world is flat, rectangle, and their concept of civilization moved out in concentric rectangles. In the middle was the royal domain, next was the princely domain, next was the domain of their vassals. After that came the domain of the allied barbarians, and thereafter was the domain of savages. तो मतलब वो रेक्टेंगल के बाद क्या एज था, आज से नीचे गिर जाएंगे क्या? उनका थॉट प्रोसेस क्या तो था? कॉन्सेप्ट तो वही रहा होगा कि हम तो गिर जाएंगे, जब भी तो देवर नेवर अ सीफेयरिंग नेशन ना. कैन यू इमेजिन? For a long time, the Europeans were also not a seafaring nation. They were scared या that if they went to the edge of the world, they'll fall off. हम्म So much later, by the end of the 15th century, 16th century, they came up from that, and that's how 15th century mein Vasco da Gama and all started sailing. Then 17th century mein they started going up. But before that, no. When you look at the concept in the Mediterranean region, Greeks and the Romans, world was flat and you would fall off if you went to the edge of the world. तो ये फ्लैट So अर्थ, चाइनीज आर द ओरिजिनल फ्लैट Mediterranean अर्थ। Sea, yeah, Mediterranean Sea से निकलना नहीं चाहते थे, निकलते थे तो you'll hug the coast and go. When अच्छा, our कोई sailors were going all the way from peninsular India right through up to the Mediterranean Sea and doing all the trading, and right up to Japan from the other side along the Pacific, right up to Japan and doing all the trading. So that's the difference. So अभी वो मिडिल किंगडम नाम क्यों बोलते हैं अपने आप को, मैं समझाता हूँ. Next. Now you see, this is the heartland, and this was the area of their known world जो मैंने आपको ये वायलेट डॉटेड लाइंस में दिया. दिस इज उसको देयर इतना ही एरिया ऑफ पता द था। नोन. इससे ज्यादा उनको पता नहीं था, क्योंकि यहीं से आते थे लोग, तो इतना तकरीबन है. एंड रफली जो रेड है वॉज द हान हार्टलैंड. सो दिस वॉज, they would take it, this is the middle of the world, and so this is the world, we are the middle kingdom. इतना ही आता था उनको. And since they used to be attacked from Mongolia or Tibet, so hence or Xinjiang, so these were the areas they had to control and dominate. Kunming से भी आ जाते थे, तो these were the areas that had to be controlled or dominated, so that these are the vassal areas that they are looking at. And mandate was, they always looked upon, the people looked upon it, that जो भी किंग है, जो भी डायनेस्टी आ गया है, पावरफुल किंग है, he has the mandate to rule the from heaven, which they have now construed to mandate to rule the world. And they अच्छा, feel they are the only civilized people, बाकी सब savages. Okay, and this is what is, they have expanded their Tianxia. Tianxia was the middle kingdom, all under the universe. All under the universe is this only, and they wanted to control all this. Their claims also come from all this. जी, साइबेरिया, जापान, करेक्ट, साइबेरिया, एग्जैक्टली। ये इधर मंचूरिया, ऑल दीज एरियाज, वो इनके क्लेम्स सिक्स थे. वॉर्स भी यहीं पे बैठता है सर। सिक्स वॉर्स जो इनका कॉन्सेप्ट सारे है भी वो भी इसी इसी के में अंदर बैठ है, जाता है। इसी के जी। अंदर है. ठीक है. हम्म सो हम्म जब भी स्ट्रांग हुए थे, दे वर अ रीजनल पावर. हम्म बट अब क्या प्रॉब्लम आया,
वी कैन हाइड दिस स्लाइड और या लीव इट, ऑडियंस देखता रहे, कि भाई वेस्ट और यूएस ने तो बहुत लार्जेस्ट दिया इसको डेवलप करने के लिए इकोनॉमिकली, कि ही विल बी अ काउंटर टू द सोवियत यूनियन। ये सोचा नहीं कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, कि अगर सोवियत यूनियन टूट गया तो इसका क्या होगा। एक ही प्लान लेके चले थे कि जब काफी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा तो पीपल विल यर्न फॉर डेमोक्रेसी एंड इट विल ऑटोमेटिकली बिकम डेमोक्रेटिक। अच्छा। And 87, 86, 87, 88, there was a lot of push from the US and the West through Hong Kong to for the democratic movement, which is why it came through the students. हम्म। Because from 85, the students, whole lot of students used to go to the US to and the West to study. And I'm sure they were brainwashed on democracy and they came here to push for democracy. And hence, it was in the Beijing, only in Beijing and the university students there who came out on the streets. हम्म। It was led, the movement was led by university students. ठीक है, एंड उसको एक इंडिस्पेंसेबल सप्लाई चेन हब बना दिया आपने। अब आप चीख रहे हो डी लिंकिंग, डी रिस्किंग, फ्रेंड शोरिंग, बट पैसे कहाँ है आपको दोबारा किसी और जगह बनाने के लिए? कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो आपने चाइना में डाले थे ये सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, एंड you trained so many students and brought everything and created the supply chain hub. वो हम्म। अलग बात है कि वैल्यू एडिशन चाइना का और वॉट एवर लिटिल एक्सपोर्ट्स इंडिया का होता था वो रफली द सेम, देयर वाज नो लोकल वैल्यू एडिशन। वॉट एवर टेक्नोलॉजी केम फ्रॉम आउटसाइड, दे वर जस्ट मेकिंग एज पर आउटसाइड, लाइक हम बोलते हैं ना टीओटी में डिजाइन मिल गया वो बना दो, ठीक है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, आपको निकलना है, कैसे निकलोगे, किधर जाओगे? Who will give you that same range, scope and depth and will be dependable now? हम्म। इसने तो शैडो ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए हैं और अपने एलाइज के साथ, और जिनको कोर्स कर सकता है वो शैडो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करना चाहता है। अगर सक्सेसफुल हो गया विद इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम, यू विल हैव टू सिस्टम्स which has cross dependencies, करेक्ट। because countries on both sides are uh, members of both institutions. लाइक That अस। is where I don't know how people talk of bipolarity of Cold War 2.0. Maybe I'm little unversed. Cold War का मतलब होता है, bipolarity का मतलब one system one side, another system other side, and the two systems don't meet. Period. Which was there during the Soviet time. Not here, यार. हाँ. इसमें आप जो ब्रेकआउट बोल रहे हो सर, आपने जो सवाल पूछा है, इनका नॉर्थ ईस्ट का जो गेम है वो तो उसी के चक्कर में है, क्योंकि वहां से ब्रेकआउट कर सकता है वो। ये जो लॉक जैम लगा रखा है पैसिफिक के अंदर, the only place that he can actually break out as an alternative is India's northeast. तो इसका इंटरेस्ट इतना लद्दाख में क्यों है सर? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि I'll come to that. I'll come to that. हम्म। सी अभी और नॉर्थ ईस्ट के थ्रू निकलेगा कैसे? ही नीड्स म्यांमार ना, उसके बगैर तो जा ही नहीं सकता नॉर्थ ईस्ट। हम्म। ही नीड्स बांग्लादेश आल्सो एज अ फर्म बेस। इधर अ कंप्लीटली बोथ वीकेंड आर इंडिया, जहां से जो मर्जी करे वो बट एमओयू बोथ शेमओयू आर आउट साइन ऑफ करा हिज के जो हैंड्स, मर्जी करा लो। बोथ आर आउट ऑफ हिज हैंड्स टुडे। जी। तो कहां से जाएगा? आई वाज करेक्ट। टॉकिंग मोर ऑफ द कोल्ड वॉर। जी 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 जी। बाइपोलैरिटी कैसे हुआ? क्योंकि ही इज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस which the US and the West have created. Plus, he has created his own institutions which he leads, which are shadow organizations to these institutions, where a whole lot of countries, including Global North, are part of it.
तो इन लिटिल टर्म बाइपोलैरिटी एंड कोल्ड वॉर कैसे हुआ? ओके, नाउ प्रॉब्लम ये है जो यूएस एंड वेस्ट को हो रहा है कि they are looking at de-risking. I'll come to next when we talk in terms of Bharat, but it's going to take time. ड्रास्टिक एक्शन जैसे रशिया के साथ किया, अकाउंट फ्रीज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. नाउ चैटर ऑन की जो फ्रोजन अकाउंट है विल यूज फॉर रीबिल्डिंग यूक्रेन. जो कुछ भी बोले, चाइना के साथ कर सकता है क्या? दुकान बंद हो जाएगी यूएस और वेस्ट की यार. इवन जापान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान की दुकान बंद हो जाएगी. ये वही चक्कर है, एक दूसरे की दुकान बंद हो जाएगी. Correct. So how do you call it cold war or bipolarity? When your dependencies are so deep. And this is where comes Bharat. Because if you're looking for an alternative, the only country जो आपको उस तरह का रेंज, डेप्थ और स्कोप दे सकता है चीन के जैसे, इज भारत. And it's a democracy. But the rising Bharat with strategic autonomy, voice of the global south, is anathema for the deep state. पैसे तो अपना उनके गेम पास खेल रहे हैं. नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है, अभी बताया ना, जैसे आपको इन्वेस्ट करना है तो पैसे तो डीप स्टेट के पास है ना, नेशंस के पास तो बचे नहीं है यूएस और वेस्ट के पास. द जी. डीप स्टेट हैज टू इन्वेस्ट एंड दिस इज एनाथेमा टू द डीप स्टेट. उनका स्ट्रैटेजी वही है कि मैं एक्सप्लॉइट करूं ग्लोबल साउथ को और अपने पैसे बनाऊं. करेक्ट. अब भारत खड़ा है मल्टीपोलैरिटी के लिए, वसुधैव कुटुंबकम एंड सागर, security and growth for all in the region, and he will not permit exploitation of the global south. This is the catch 22 situation being faced by the deep state. Oh, they would always prefer an emasculated Bharat in the sense center is not strong. There is a hung parliament and coalition, in the sense coalition hai, no party has a majority, and they will always be able to manipulate their way and get their way. बहुत हमारा जो कुछ भी लोग हैं सब अटेंशन किसके ऊपर है? इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस ऑफ द पीआरसी. You think influence operations of the US West and the deep state in India is any less? I keep It's covering that, sir. much more. चाइना तो बच्चा है. हाँ, they have been infiltrating our system since donkey's years. जी जी जी. Since the time of colonization. तब से तभी मेरा फोकस हमेशा एंटी इंडियन. तब तो पीआरसी था भी नहीं ऑन द ड्राइंग बोर्ड. तभी सर हम लोग फोकस जब करते हैं एंटी इंडिया नैरेटिव में, चाइना बहुत कम फीचर होता है उसके अंदर. हाँ, वो न्यूज क्लिक क्लिक लिए वो सब कुछ है, दैट्स करेक्ट, बट द मेन नैरेटिव तो वहां से आता है ना. मेन वहां से है. तो जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.